Okay, whenever I ask you some questions, you just reply me, है ना? So that the class can be interactive. So the first question is this chapter name is manufacturing industry. Who can tell me what is the meaning of manufacturing? Anyone? Manufacturing का क्या मतलब होता है? So making or getting things ready or to pack something, for example, the packaged foods. Good, good, good. So basically, all of you know there are three types of activities in our economy, right? The first one is primary, है ना? Another one is secondary activities, and the third one is tertiary, tertiary. है ना? पढ़ा है ना पहले? So Yes, sir. primary activities are those activities in which, है ना, we produce raw materials. Basically, you can say from nature by using natural, you can say natural resources. We produce raw materials, right or not? For example, primary sectors में क्या आते हैं? Agriculture mainly. Apart from this, what else? फिशिंग है ना, देन हॉर्टिकल्चर है ना, ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं. This manufacturing sector comes under secondary activities in which basically we are converting the raw materials into finished goods, है ना. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? Simply we are converting the raw material into the finished goods. For example, you are producing cotton फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी, है ना. एग्रीकल्चर में क्या होता है? फार्मर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉटन. व्हाट वी आर डूइंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वी आर प्रोसेसिंग दिस कॉटन एंड मेकिंग cloth. Tell me yes or no. Yes, sir. Good. So producing cotton is a primary activities, while processing that cotton and making it as a cloth is comes under manufacturing, that is secondary activity, right? So simply we are going to talk about this manufacturing industry in this chapter. So the first thing, the first question itself, it is very important. What is manufacturing? Simply, it is written over here: production of goods in large quantity after processing, है ना? After processing from raw materials. Just I told you कि raw material को जब हम process करते हैं और उसको large quantity में produce करते हैं finished goods की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Manufacturing. Here one term is written: processing from raw materials to more valuable products, है ना. जब हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनती है दैट बिकम मोर वैल्यूबल, है ना. सो ऑल ऑफ यू नो दैट कॉटन को जब हम क्लॉथ बनाते हैं, तो क्लॉथ इज मोर वैल्यूबल वैल्यूबल कंपेरिजन टू द कॉटन. टेल मी यस और नो. Yes, sir. यस. सो दीज आर द एग्जांपल, है ना. दीज आर द एग्जांपल्स: cloth from cotton, sugar from sugarcane, paper from wood, iron from iron ore, aluminium from bauxite. So these are the some examples. You can also give me some examples. Anyone tell me some examples of manufacturing industries? Sir, कोई सा. Amul. Okay. Anything else? यहाँ पर Sir, देखो Tata. पिक्चर. Look at this picture. हाँ. Look at this picture. And देखो यहाँ पर क्या हो रहा है actually. क्या हो रहा है? What do you think? Which industry is this? This one? Sir, secondary industry. Sorry. No, no. Which industry? Which produce? Which goods is producing here? कौन सा goods produce The किया जा car. रहा है? ये वाला, this one. Number two. अच्छा, Paper. Number one. है ना? Maybe it is a. I think it is a paper industry, right or not? Yes, Paper sir. का production हो रहा है, right or not? And look at here. This is the basically a center where cloths are produced. है ना? यहाँ पर कई सारे weavers बैठे हुए हैं और वो cloth produce कर रहे हैं. This one is क्या Refinery. है ये? तीसरा नंबर कौन सा है? Sir, इंडस्ट्री. refinery. रिफाइनरी है. वेरी गुड, है ना. देन दिस वन
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पैक्ड फूड, जो फूड को पैक किया जाता है वो है, यहाँ पर ये कार मैन्युफैक्चरिंग है. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. यू टेल मी व्हाई this manufacturing industry is required in our country. Simple सा question है. Tell me. Sir, to fulfill our basic needs. Okay, good. To fulfill our basic needs. For example, if we required, है ना, take an example कि हमें क्या चाहिए. हमारे पास take an example, you want to take education, है ना, आपको education चाहिए. तो एजुकेशन के लिए nowadays we are facing this COVID-19 situation and all of you are sitting at home and taking the online classes with the help of mobile phone, है ना. तो ये मोबाइल फोन कहाँ पर बना है? It is made in manufacturing industries. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. what else? Good. Then इसके अलावा और क्या जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का? Do you think that agriculture got benefited with this manufacturing industry? एग्रीकल्चर को कोई बेनिफिट मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से? थिंक अबाउट इट. Sir, Sir, वो हुआ है. हाँ, टेल मी. सर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो एग्रीकल्चर से खरीदते हैं. Okay, good, very good. Whatever raw materials is required by manufacturing industry, it comes from agriculture, right or not? So ultimately, if manufacturing industry is purchasing certain raw materials from agriculture, it means that agriculture will get benefited. Good, that is okay. What else? और किस तरह से agriculture benefit होता है? How this agriculture benefited from this manufacturing industry? Any other way? Do you think that agriculture also required something from manufacturing industry? Yes, sir. What? Yes, sir. क्या Sir, चाहिए? fertilizers. Fertilizers Sir, चाहिए. Very good. tractors, tools. Pesticides. Very good. Harvesting machines. Very good. कई सारी चीजें हैं जो कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है एंड एग्रीकल्चर में उसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, हालांकि कई सारे हैं, देयर आर सम, इट इज मेंशन इन योर बुक, सो आई रिटन ओवर हियर. द फर्स्ट थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर. एग्री all of you? Because of manufacturing industries nowadays agriculture gets modernized. आज एग्रीकल्चर में कई कई अलग अलग तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Then do you think that our India at the time of independence, most of the people, approximately 70 to 80% people, they were totally dependent upon agriculture, है ना. At the time of independence, mostly 70 to 80% people, they were dependent upon agriculture, है ना. था ना उस समय, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा था, जो फार्मर्स होते थे उनके बीच कंपटीशन काफी ज्यादा था, है ना. मेनी पीपल वर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, दे वर सेलिंग इन द मार्केट. ऑल ऑफ यू नो, अगर मार्केट में गुड्स ज्यादा होंगे, है ना, तो क्या होगा, उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना. सो देयर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, दे वर नॉट हैविंग जॉब्स, उनके पास काम नहीं था ठीक तरीके से. सो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना, जब हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ, मेनी पीपल हु वर वर्किंग अर्लियर इन द एग्रीकल्चर, दे शिफ्टेड टू द manufacturing industry. Is it so? Tell me yes or no. Yes, sir.
ऑब्वियसली यस, है ना, कई सारे लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल के कहाँ लाया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके आया गया, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना, दे break down the regional disparities. What is regional disparities? Regional disparities क्या होता है? Okay, look at here. In our country India, right? Screen दिख रहा है ना आप लोगों को? Tell me हाँ something. सर। Yes, sir. In our country India, you will find that in this region, western region, जैसे कि the state of Gujarat, the state of Maharashtra, right? Karnataka, right? Then Kerala. These are the states, they are highly developed, है ना। ये वाला जो स्टेट्स है ये काफी ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पर के लोगों की जो इनकम है वो काफी ज्यादा हाई है। बट इन आवर कंट्री इंडिया, सम स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, ओडिशा, है ना, इवन असम आल्सो, है ना, दीज आर द स्टेट्स जहां पर लोगों की इनकम बहुत कम है ना। इसी को हम बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज? कि इन आवर कंट्री इटसेल्फ देयर आर मेनी स्टेट्स हु दैट आर डेवलप्ड, बट देयर आर मेनी स्टेट व्हिच आर बैकवर्ड। अंडरस्टूड? सो हाउ इट हैपेंड? ऐसा कैसे हो गया? टेल मी, ऐसा कैसे हो गया? क्यों ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला एक डेवलप्ड स्टेट की गिनती में आते हैं? क्यों? व्हाई? सर क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं और केरला वो एजुकेशन के मामले में आगे है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करके डेवलप हुआ है और बाकी सब अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके डेवलप्ड हुए। गुड। सो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखो, दिस गुजरात, यू विल फाइंड दैट इन गुजरात देयर आर मेनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। वन रीजन बिहाइंड देयर डेवलपमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस गुजरात, मुंबई, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज नियर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, इवन इन कर्नाटका ऑल्सो, है ना। तो ये सारे स्टेट में कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। बट इफ यू गो टू दिस स्टेट्स, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, है ना, यहाँ पर क्या है कि वेरी लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, है ना। यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाया इंडस्ट्रीज का, दैट्स व्हाई दीज स्टेट्स गॉट डेवलप, और ये वाला स्टेट्स जो है यहाँ पर डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं, है ना। सो इफ वी वांट टू रिड्यूस दिस डिस्पैरिटीज, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये वाला स्टेट भी इक्वली डेवलप हो और ये वाला भी स्टेट इक्वली डेवलप हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सेट अप सर्टेन इंडस्ट्रीज हियर आल्सो, so that they can also export some goods and earn some more money here, right or not? So by establishing industries, we can reduce the regional disparities. Understood the meaning of regional disparities? Yes, sir. यस सर। Good. Then whenever we एक्सपोर्ट सम गुड्स, जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? सिंपली यू कैन से द इंटरनेशनल करेंसी, दैट इज डॉलर, है ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आपको समझ में आता है ना, लास्ट क्लास में भी समझाया था, इंटरनेशनलिज्म इन इंडिया आल्सो, है ना। सो व्हेनेवर वी प्रोड्यूस सम गुड्स, ठीक है, उसको जब हम किसी दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, टेक एन एग्जांपल कि हमने अमेरिका को सेल किया, है ना, तो इससे क्या होगा? अमेरिका विल पे सर्टेन अमाउंट टू अस इन डॉलर, है ना। तो ये जो है ये एक इंटरनेशनल करेंसी है, दिस करेंसी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द कंट्री, सो इट विल आल्सो इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, इंपोर्ट ज्यादा अच्छा है या एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा है? सर एक्सपोर्ट। Export, sir. Who can tell me the meaning of import and export? What is the meaning of import? सर इंपोर्ट मतलब किसी Take दूसरे something कंट्री from से हमारे कंट्री में गुड्स लेके आना। Very good. Then export means what? सर एक्सपोर्ट मतलब किसी, सर एक्सपोर्ट मतलब हमारे कंट्री से किसी
सर हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट को ट्रांसफर करना। Good. So whenever we are doing export, we are getting certain benefits. Obvious सी बात है, अगर हम कोई सामान किसी को बेच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचेगा, है कि नहीं? सो एक्सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ कंट्री एंड एक्सपोर्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कंट्रीज हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अगर हम बनाएंगे ही नहीं तो हम दूसरे को बेचेंगे क्या? अंडरस्टूड? सो दैट इज ऑल्सो देयर. देन बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है ना? When we create new industries, then people get employments and employment ultimately reduce the poverty, right? Then when we transform the raw materials, जब हम raw material को process करके finished goods बनाते हैं तो हमारा कंट्री और क्या हो जाता है? prosperous हो जाता है. यू कैन से उनकी डेवलपमेंट ज्यादा होती है. ठीक है? ओके, डन. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस वन? No. Okay, good. Now look at here, there are certain examples given here, है ना? How this manufacturing industry help agriculture, है ना? यहाँ पर देखो कुछ कुछ पिक्चर्स में मशीन्स दिए हुए हैं जो कहाँ पर बनते हैं. All these machines are made up in manufacturing industry, right? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. So because of all this technology, because of all these machines, can we say that in our country the production of agricultural crops increased? हमारे कंट्री में ये जो हमने इरिगेशन पंप्स लगाए हैं, फर्टिलाइजर लगाए हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, पीवीसी पाइप, प्लास्टिक्स, मशीन्स, इन सारी चीजों को जब हम यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर, इसकी वजह से हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हो गया. कैन वी से इट? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the topic which shows that how agriculture is helped by manufacturing industry. Now coming to the next topic, that is the contribution of industry to the national economy. That means overall whatever we are earning, जितना भी पैसे हम अर्न कर रहे हैं, जितना हमारा जीडीपी है, उसमें इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री कितना हेल्प करती है. तो लुक एट हियर, इन आवर कंट्री दिस मैन्युफैक्चरिंग, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, टोटल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 27%. टोटल जीडीपी जो हमारी कंट्री की है उसका 27% कहां से आता है? इंडस्ट्री से, राइट? देन 60% कहां से आता है? टेल मी. टर्सरी सेक्टर से, राइट? ये आता है सेकेंडरी सेक्टर से. और बच गए बाकी के कितने? टेल मी फास्ट. कितने हो गए? 60 प्लस 27, हाउ मच? 87%. 87. Only 13% is generated by agriculture, है ना? So in our country most of the income coming from tertiary sector, right? दूसरे नंबर पे कौन है? सेकेंडरी सेक्टर है. That's why it is very low amount actually. 27% is a very low amount. So we need to improve industry, है ना? तो हमारी कंट्री में 27% इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट? Look at here, there are certain data are given. The growth rate of GDP nowadays in our country is 7%. What is the meaning of it? इसका मतलब क्या है कि if in the last year we produced the goods of 100 rupees, this year we produced 107 rupees. So इसको ग्रोथ रेट बोलेंगे. 7%. 7% ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? पिछले साल अगर हमने 100 रुपीज का सामान प्रोड्यूस किया था तो इस साल हमने कितना प्रोड्यूस किया? 107 रुपीज. ठीक है? बट इट इज नॉट इनफ. दिस 7% इज नॉट इनफ. वी मस्ट ग्रो एट द रेट ऑफ 12 to 15%. अंडरस्टूड? कई सारे वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कि काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है. अंडरस्टूड? The young population in India is very high. So
India should grow at the rate of 12 to 15% per year, जो कि हमारा अभी ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, अभी का ग्रोथ रेट क्या ठीक ठाक होगा या फिर कम होगा? Nowadays, that means this year in 2021 and 2020 में क्या लगता है आपको, ग्रोथ रेट कम होगा या ज्यादा होगा? Tell me, anyone. डू यू थिंक कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट अभी ज्यादा होगा? सर कम लग रहा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। हाँ, गुड। सो हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट अभी थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, राइट और नॉट? सो इफ वी वांट टू इम्प्रूव दिस ग्रोथ रेट, है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, द पॉपुलेशन शुड बी ट्रेंड, है ना, पॉपुलेशन शुड बी ट्रेंड टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। किस चीज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? कि कैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, डन। टेल मी, एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट लुक एट हियर। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की आज की डेट में कई सारी पॉलिसीज हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि स्किल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। व्हाट इज स्किल इंडिया? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है स्किल इंडिया का? क्या ऑब्जेक्टिव है? सिंपली टू स्किल द पीपल, है ना। रिसेंटली आपने देखा कि आपके स्कूल में भी कुछ लोगों को कंप्यूटर का एजुकेशन दिया जा रहा है। व्हाई सो? ऐसा क्यों किया जा रहा है? टेल मी। सो दैट पीपल शुड हैव स्किल्स टू वर्क, है ना। तो इन सारी चीजों को प्लान करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, एक काउंसिल है, जिसको हम बोलते हैं एनएमसीसी। एनएमसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, तो ये आप याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑल ऑफ यू नो दैट we set up the industries in different parts of our country, right? So take an example, I am making you the honor of an industry, है ना। टेक एन एग्जाम्पल कि आपको एक इंडस्ट्री खोलनी है फ्यूचर में। विच एरिया यू विल प्रेफर टू ओपन द इंडस्ट्री? कौन सा एरिया प्रेफर करोगे? टेल मी। टेक एन एग्जाम्पल कि आपको एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोलनी है, जहां पर कि आप कपड़े बनाना चाहते हैं। ओके, इंडिया के कौन से स्टेट में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन करोगे? सिंपली टेल मी, और क्यों? या फिर कौन सी जगह पर आप ओपन करोगे और आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पर? एनीवन वांट टू आंसर? लेट मी रिपीट वंस अगेन। इफ यू वांट टू ओपन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां पर आप चाहते हो कि आप कपड़े बना के मार्केट में सेल करो, राइट, तो आप कौन सी जगह पर उस इंडस्ट्री को ओपन करोगे? सर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहाँ पे ओके, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा। वेरी गुड। व्हाई? क्यों आपने ऐसा चुना? ये जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर मैं इंडस्ट्री ओपन करूंगा, व्हाई? सर ताकि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वो इंडस्ट्री पे आने के लिए, और क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके Good, इसके लिए। good, very good. So you are trying to say that you will open the industry near the populated area so that people can purchase the goods easily. Yes or no? लोगों तक वो सामान आसानी से पहुंचाया जा सके,
वहां पर आप खोलोगे, यही ना? हाँ वेरी सर, और वो क्या बोलते हैं, लेबर्स भी ज्यादा मिले, और लेबर्स ज्यादा मिले ताकि गुड्स ज्यादा प्रोडक्ट हुए हो, मतलब वेरी ज्यादा गुड, वेरी प्रोडक्शन हो। गुड. You will consider this one also, that uh, you will find the place where the labors are cheaply available, जहां पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाए और कम दाम पे मिल जाए, कम वेज पे मिल जाए. वेरी गुड. व्हाट एल्स, और क्या देखोगे आप? एनीबॉडी एल्स? सर फिर जहाँ पे उस इंडस्ट्री के लिए मतलब जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, जैसे वेरी गुड. गुजरात और रॉ मटेरियल महाराष्ट्र इजली में। अवेलेबल. Good, good, good. Very good. So if you want to open the textile industry, you will prefer the state of Gujarat and Maharashtra, because Gujarat and Maharashtra में black soil मिलता है, वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है. वेरी गुड. देन व्हाट एल्स, और क्या देखोगे आप? सर ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन स्टेट्स अच्छा में। होनी चाहिए. वेरी गुड. रोडवेज अच्छी होनी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी होनी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। चाहिए. वेरी गुड. देन वाटर की अवेलेबिलिटी. यस, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज में, कई सारी इंडस्ट्री में. सो इफ यू वांट टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, you will look at different factors, है ना? Some of them are geographical factors, some of them are non-geographical factor. For example, availability of raw materials, availability of water, climate अच्छी होनी चाहिए, है ना? इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मार्केट शुड बी देयर, है ना? देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहां पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, सो दैट if you need certain amount of money you can take the loan from the bank. Apart from this, you will also look for suitable government policies. That means, take an example कि आज अगर आसाम की गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि एनी इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन करता है, देन फर्स्ट 5 years गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी टैक्स. पहले 5 साल तक गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी. क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन है वो आसाम में इंडस्ट्री ओपन करना चाहेंगे? टेल मी यस और नो. यस सर। Yes, obviously. So this is called suitable government policies. गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी इंडस्ट्रीज को ओपन कराने के लिए अपने स्टेट्स में कई तरह की छूट देती है इंडस्ट्रीज वालों को, कि आपको टैक्स नहीं लगेगा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और आई विल प्रोवाइड यू लैंड at a lower cost. Please come to my state. Such type of policies or taxes reduction is given, offered to this businessman, right? So all these factors decide the location of industries, right? लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सारे फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये एक जगह पर होना पॉसिबल नहीं है ना? सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट और नॉट? सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी चीजों को देख करके, ठीक है, टेक एन एग्जांपल कि वाटर यहाँ पर है, टेक एन एग्जांपल कि स्किल लेबर इस वाले स्टेट में है, टेक एन एग्जांपल, राइट और नॉट? ठीक है. एंड देन मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर है, तो दे विल ओपन दिस इंडस्ट्री हियर, सो दैट दे कैन गेट द लेबर्स ऑल्सो, है ना? दे कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू मार्केट ऑल्सो. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Accordingly they decide the locations, right? And nowadays you will find that in India there are many places which is known for industrial sector. कई सारी ऐसी places हैं जैसे कि नोएडा, दिल्ली के पास है. There are many industries there. क्यों हुआ वहां पर इंडस्ट्रीज, क्यों हो गए कई सारे इंडस्ट्रीज, क्यों हो गए? पहले एक इंडस्ट्री ओपन हुई, टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि, देखो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, ये है नोएडा, दिल्ली के पास, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है एक्चुअली ये. नोएडा में मान लेते हैं कि टाटा ने एक कार कंपनी खोली, ठीक है, टाटा ने क्या खोला, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली यहाँ पर, राइट? नाउ ये जो
टाटा कंपनी है, ये जब कार को मैन्युफैक्चर करेगी, दिस कंपनी विल नॉट मैन्युफैक्चर ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो कार के टायर्स हैं ये मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, ये क्या करेगी, टाटा खरीदेगी किसी दूसरे कंपनी से। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ये बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई कार कंपनी कार बनाती है तो पूरा का पूरा कार वो खुद से नहीं बनाती है, कुछ सामान वो दूसरे कंपनी से भी खरीदती है। अंडरस्टूड? So if this Tata company require tire, so do you think that because of this Tata manufacturing industry, यहाँ पर कोई एक और कंपनी ओपन हो जाएगी, एक और इंडस्ट्री ओपन हो जाएगी जो टायर बनाती है? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So दो कंपनी ओपन हो गए. Now look at here, there are many employees working here. कई सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना? अब उसके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, तो यहाँ पर एक स्कूल भी बन जाएगा, है ना? ठीक है। उसके अलावे जो छोटे छोटे चीजों की, जो जैसे मॉल, उन्हें अगर कुछ सामान खरीदना हो, ग्रोसरी का सामान खरीदना हो, उसके लिए एक मॉल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब टाटा कंपनी को मान लेते हैं कि छोटे छोटे जो ग्लासेस चाहिए, कार में जो ग्लासेस लगाई जाती है वो भी चाहिए, तो उसके लिए एक अलग इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। दैट मीन्स व्हाट, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कहीं पर कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री या बड़ी सी इंडस्ट्री ओपन होती है, देन उसके आसपास के एरियाज में कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगते हैं। ठीक है, वहां पर मार्केट आ जाएगा, है ना, वहां पर होटल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. वहां पर कई सारे मॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर सिनेमा हॉल्स मिलेगा। So look at here, only by coming any one company you will find that in this place there are many other economic activities also started happening. This is called agglomeration economies, है ना? देखो लिखा हुआ यहाँ पर, when a large number of companies, services or industries exist in close proximity, मतलब जो कई सारे इंडस्ट्रीज एक साथ आपस में आ जाते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, है ना? जैसे कि टाटा को टायर चाहिए, है ना, तो ये कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। टेल मी यस और नो। अब टायर बनाने के लिए, टेक एन एग्जांपल कि टायर बनाने के लिए इसे रबड़ चाहिए। टेल मी यस और नो। रबड़ चाहिए, या फिर टायर को बनाने के लिए कोल चाहिए, आग तो चाहिए टायर को पिघलाने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक और बड़ी सी कोई एक इंडस्ट्री ओपन हो जाए जहां पर से कोल सप्लाई हो रहा है। So this is called agglomeration economy. Anyone have any doubt in this one? No. Okay. One another factor is nowadays most of the industries located in any part of our country, कहीं पर भी ओपन हो जाता है। Why? Because of the improved transportation. हमारे कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। दैट्स वाई आज हमारी कंट्री में हर एक जगह पर इंडस्ट्री मिलती है। अर्लियर इट वाज यूजुअली लोकेटेड नियर कोस्टल रीजन। पहले के जमाने में क्या होता था, जो इंडस्ट्रीज होती थी वो मोस्टली कहां पर लोकेटेड होती थी, कोस्टल रीजन में होती थी। बट नाउअडेज इट इज लोकेटेड एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम नोज दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल ऑल्सो, है ना, वी कैन ट्रांसपोर्ट द फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अंडरस्टूड? टेल मी। एक और पॉइंट है यहाँ पर देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। व्हाट डज इट मीन? जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? टेल मी। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? बोलिए। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट, टाउन्स बन जाना, है ना, टाउन्स बन जाना, सिटीज बन जाना, ये अर्बनाइजेशन कहलाता है, राइट? तो लुक एट हियर, यहाँ पर देखो, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, नोएडा में मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी ओपन हुई, तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया क्या हो गया, अर्बनाइज हो गया। यहाँ पर स्कूल्स ओपन हो गए, मॉल्स ओपन हो गए, मार्केट्स ओपन हो गए, सिनेमा हॉल ओपन हो गया। सो ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज अर्बनाइजेशन।
पॉपुलेशन यहाँ का ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए, सो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। रेस्ट we will discuss in the next class. We will discuss about the classification of industries. Okay, ask your friends also to join the class, है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टाइम में, you can tell me. अपने फ्रेंड से भी पूछ लेना, कोई अगर ट्यूशन वगैरह जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। देन वी विल, इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होगा, देन आई विल चेंज द टाइमिंग ऑल्सो।